So, hi champions, how are you people? So, we are going to start part 10 of geography previous year questions, and this will start the series of Indian geography now. That is the last section of geography previous year questions, and we'll have total 6 videos on Indian geography, 11 questions each. So, total 66 questions in 10 years. So, let's start. So, first question is from the year 2019. What is common to the places known as Aliyar, Isapur and Kangsabati? A. Recently discovered uranium deposits. B. Tropical rainforests. C. Underground cave systems. D. Water reservoirs. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is water reservoirs. So we'll see about Aliyar, Isapur and Kangsabati. What are these? Again, the question is from the year 2019. Consider the following pairs, glacier river, and you have to like map the glaciers to the river. So Bandarpanch, Yamuna, Barasigri, Chenab, Milam, Mandakini, Siachen, Nubra, Zemu, Manas. Which of the pairs given above are correctly matched? So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is like 1, 2 and 4. So Bandarpanch Yamuna is right, Barasigri Chenab is right, Siachen Nubra is right. बाकी मिलाम और जेमू जो है वो गलत है. सो हम लोग थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं एक बार फिर से ग्लेशियर्स कौन से रिवर्स के हैं लाइक बंदरपंच यमुना तो ठीक है बारासिगरी चेनब भी ठीक है मिलाम इज ऑफ द रिवर गोरी गंगा विच इज इन कुमाऊं लाइक हिमालय उत्तराखंड एंड सियाचिन इज फ्रॉम नुब्रा विच इज इन लाइक काराकोरम लद्दाख ठीक है सियाचिन ग्लेशियर तो आई थिंक सबको पता है लद्दाख वाला ठीक है फिर जेमू is for the river Tista, which is at the base of Kanchenjunga in Sikkim. And Bandapanch is in Uttarakhand, like the glacier originates from the river Yamuna in Garhwal Himalayas, Uttarakhand. And Barasigri originates from Chenab River in Himachal Pradesh, and it is considered the second longest glacier in Himalaya after Gangotri. So Gangotri के बाद कौन सा ग्लेशियर आता है like length में it is Barasigri from Chenab. Okay, so this is the right answers. Tough question I must say. So let's proceed to the next question. Next question again is from the year 2019. We have to map the famous places to the rivers. So the places are Pandharpur, Chandrabhaga, Tiruchirappalli, Kaveri, Hampi, Malaprabha. So which of the pairs given above are correctly matched? So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option A, that is 1 and 2 only. Hampi is not on Malaprabha river, it is on Tungabhadra river, that is in Karnataka. Okay, and Tiruchirappalli Kaveri is right, and the Kaveri and its tributary, the Kolidam, are the two major rivers draining Tiruchirappalli. So, Kaveri or Kolidam kuch bhi likhe, Tiruchirappalli will be correctly mapped to that place. Okay. फिर Pandharpur is also like correctly mapped to Chandrabhaga river, which is in or it is also known as Bhima river, Chandrabhaga, and this is in Maharashtra. So that is the right answer. You should know. ये सब थोड़े मतलब आपको देखना पड़ेगा. लाइक हम्पी तो फिर भी सही है नहीं हम्पी नहीं तिरुचिरापल्ली लाइक आप सोच सकते हैं तो सेकंड इंसान को पता होता है बट सेकंड 3 ऑप्शंस में है सो थोड़ा और इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत है मतलब 3 को स्ट्राइक आउट करने की ज़रूरत है तो अगर हम्पी पता है आपको क्योंकि हम्पी इज अ लाइक पॉपुलर प्लेस सो हम्पी अगर पता है कि तुंगभद्रा रिवर पे मालाप्रभा रिवर पे नहीं है तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है क्योंकि 3 ऑप्शंस में 3 है सो सी बी सी डी कट जाएगा और ऑप्शन ए रह जाएगा सो यस दैट इज द पॉइंट तो जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस आप पढ़ते हैं आप उनसे रिलेटेड रिवर भी पढ़ लीजिए तो आपको इजी होगा ओके क्योंकि गेम नॉर्मली फेमस प्लेसेस पे ही होता है ऐसे रैंडम प्लेसेस हमें क्वेश्चन में लगता है बट कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक आउट होके लाइक करेक्ट आंसर पे आप पहुंच सकते हो अगर आपको जो फेमस प्लेसेस हैं उनके बारे में चीजें पता है तो so let's proceed but like most of the time not like 100% of the time but most of the time so let's proceed to the next question now. Next question is from the year 2019. With reference to the cultivation of kharif crops in India in the last 5 years, consider the following statements.
First, area under rice cultivation is the highest. Second, area under the cultivation of jowar is more than that of oilseeds. Third, area of cotton cultivation is more than that of sugarcane. Fourth, area under sugar cultivation has steadily decreased. Which of the statements given above are correct? So please pause the video and I'll discuss the answer. So answer is option A, that is 1 and 3 only. So area under rice cultivation is the highest, ये सही है. और आपको पता होना चाहिए कि मेजर जो खरीफ क्रॉप्स है हमारे कंट्री में वो है राइस, मेज एंड कॉटन. ओके. सेकेंड लाइन गलत है. एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ जोआर इज नॉट मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स. थर्ड लाइन इज राइट. एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन शुगर केन. कॉटन का 120 मिलियन हेक्टेयर हुआ है और शुगर केन का 50 मिलियन हेक्टेयर. सो ऑब्वियसली कॉटन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन. फोर्थ जो है एक्चुअली आप देखिए फोर्थ स्ट्राइक आउट करने वाला थोड़ा लाइन है. जब भी ऐसे दे देता है ना, लाइक आप सोचो कि स्टेडिली डिक्रीज, मतलब शुगर केन कल्टीवेशन का एरिया एकदम कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम डेटा हो जाता है. तो अगर आप इसको थोड़ा, अगर आपको लग रहा है कि आपने कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा खेल सकते हैं, क्योंकि ये फोर्थ जो लाइन है ये थोड़ा एक्सट्रीम है कि एकदम से पूरा ही पूरा डिक्रीज हो रहा है एकदम स्ट्रेट वे में. स्टेडिली डिक्रीज दिया है ना कि एकदम सिमिलर वे में डिक्रीज हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं. जो फैक्ट है वो ये है कि ये फ्लक्चुएट किया है, कभी डिक्रीज किया फिर इंक्रीज हो गया, विच इज लाइक नॉर्मल. तो फोर अगर आप स्ट्राइक आउट कर देते हो उस बेसिस पे कि दिस सीम्स टू एक्सट्रीम टू बी ट्रू, तो आप ऑप्शन ए मार्क कर सकते हैं. इवन आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि किसके अंदर कौन सा हाईएस्ट है, किसका कितना ज्यादा है, कम है और ओके. सो क्योंकि आप देखिए फोर जो है वो तीन ऑप्शंस में है, बी सी डी. ओके. सो दैट इज हाउ लाइक वी कैन टेक चांसेस अगर आपको लग रहा है कि यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो यस, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is from the year 2019 again. With reference to the management of minor minerals in India, consider the following statements. First, sand is a minor mineral according to the prevailing law in the country. Second, state governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government. Third, state governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. So please pause the video and then we'll discuss the answer. So the answer is option A, that is 1 and 3 only. थोड़ा ज़्यादा खिंच लग रहा है यहाँ पे, बट मैंने थोड़े फैक्ट्स बताने के लिए यहाँ पे चीज़ें घुसाई हैं. लाइक देखिए फर्स्ट जो लाइन है वो सही है कि आपका हमारे देश में एक एक्ट है MMDR एक्ट, दैट इज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957. तो उसी में ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं. ऑब्वियसली आप माइंस एंड मिनरल्स है तो ये मिनरल्स और माइंस रिलेटेड चीजें वहीं पे डिस्कस होगी. तो वहां पे सेक्शन 3E में ये कहा गया है दैट ये सैंड लाइक या फिर स्टोन्स, ग्रेवल, ऑर्डिनरी क्ले, ये सब कोई या फिर कोई भी ऐसा मिनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है ऑफिशियल गैजेट में, ये सब माइनर मिनरल्स हैं. सो फर्स्ट लाइन इज करेक्ट. और यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन्ड है ऑर्डिनरी सैंड. ओके. एंड अदर देन सैंड यूज्ड फॉर प्रिस्क्राइब्ड पर्पसेस. तो अलग अलग तरीके के सैंड होते हैं, तो ऑर्डिनरी सैंड के बारे में ये बात हुई है कि दैट इज अ minor mineral. Okay. Second is state governments have the power to grant mining leases of minor minerals, which is true, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government. ये गलत है, ऐसा नहीं है. Section 15 MMDR Act 1957 का कहती है कि state government is empowered to make rules related to the grant of minor minerals. तो state government के पास leases देने के भी powers हैं और माइनर मिनरल्स के ग्रांट करने के भी परमिशंस हैं. तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उसका पावर. ठीक है. तो रूल्स जो है ग्रांट रिलेटेड माइनर मिनरल्स का वो भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है. फिर थर्ड लाइन जो है वो भी सही है, दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स. तो इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए कोई जो रूल्स बनाने हैं उसका पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है. एंड दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 23C of the MMDR Act 1957. MMDR क्या है? Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. So let's proceed to the next question. Next question is from the year 2018. Consider the following statements. First,
The Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. Second, Barren Island lies about 140 km east of Great Nicobar. Third, the last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. Which of the statements given above is or are correct? So please pause the video and then we'll discuss the answer. सो द आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज वन ओनली। थ्री जो है वो गलत है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में और बैरन आइलैंड वोल्केनो जो है वो 2017 में इरप्ट की थी। तो ये लिटरली थोड़ा करंट अफेयर क्वेश्चन था ज्योग्राफी का कि क्योंकि बैरन आइलैंड वोल्केनो का इरप्शन हुआ था 2017 में, तो थर्ड तो एकदम ही गलत हो जाता। तो इसीलिए आप देखिए अगर आप थर्ड को काट देते हो तो आप ऐसे ही ऑप्शन ए वन ओनली पे पहुंच जाते हो आंसर पे। ओके, एंड दैट वाज द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो। यस, दैट इज ट्रू, इट इज एन एक्टिव वोल्केनो इन द इंडियन टेरिटरी। तो यही है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question, which one of the following is an artificial lake? Option A, Kodaikanal, Tamil Nadu. Option B, Kolleru, Andhra Pradesh. Option C, Nainital, Uttarakhand. Option D, Renuka, Himachal Pradesh. So please pause the video and then we'll discuss the answer. So the answer is option A, Kodaikanal, Tamil Nadu. So this is really a tough question. Artificial lake पूछ रहे हैं, बहुत मुश्किल है ये कहना कि कौन सा artificial है कौन सा fresh मतलब natural है. So अगर आपको एकदम से पता नहीं है तो ये question really tough है. There is nothing to deduct or anything like that. So like कोलेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में already mentioned है. आप actually इस question को थोड़ा पढ़ाई की तरह पढ़ सकते हैं कि क्या पता कल को यूपीएससी इसी क्वेश्चन से आपको बस मैप करने दे दे कि कोडाईकनाल कहाँ है, कोलेरू कहाँ है, वो मैप द लेक टू द रीजन। तो आप ये पढ़ लीजिए अच्छे से कि कहाँ पे है। तो कोलेरू लेक, कोडाईकनाल वी ऑलरेडी हैव लाइक नो दैट यस इट इज इन तमिलनाडु एंड इट इज एन आर्टिफिशियल लेक। कोलेरू लेक इज इन आंध्र प्रदेश एंड इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो ये चलो फिर भी अगर बहुत पढ़ा है आपने तो आपको पता होगा, तो आप स्ट्राइक आउट कर सकते हो। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अ रामसर कन्वेंशन साइट। देन नैनीताल इज सिचुएटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस विद द पियर शेप्ड नैनी लेक एट इट्स सेंटर। चलो ये भी थोड़ा कर सकते हैं, बट आई थिंक रेणुका लेक ये उतना पॉपुलर नहीं है। लाइक कोल्लेरू नैनीताल फिर भी लोगों को पता होगा, बट रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश, दिस इज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस रेणुका। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो फिर ए और डी में मुश्किल हो जाता है, फिर वो 50-50 वाला गेम खेलना पड़ता है। So risky, I must say, and it's a tough question. I don't know if you know this. You're a genius. I mean, मुझे नहीं पता था. So yeah, let's proceed to the next question. Okay, this question is from the year 2018. Consider the following statements. First, in India, state governments do not have the power to auction non-coal mines. Second, Andhra Pradesh and Jharkhand do not have gold mines. Third, Rajasthan has iron ore mines. So, which of the statements given above is or are correct? So, please pause the video and then we'll discuss the answer. So the answer is option D, that is 3 only. Rajasthan has iron ore mines, ये सही है। बाकी दो स्टेटमेंट्स में गलत लिखा है। पहली बात तो अभी तुरंत हमने पढ़ा दैट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर होती है ये सब कुछ करने की। एमएमडीआर एक्ट में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और नॉर्मली भी इतना तो उस एक्ट से ये समझ में आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर नहीं होती है। सो फर्स्ट वाला हम लोग थोड़ा हटा सकते हैं कि इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, दे हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। ठीक है, और ये आप देखो लिखा हुआ है, ये अमेंडमेंट आया था एक्चुअली 2015 में, एमएमडीआर एक्ट 2015, दैट नॉन कोल माइंस हैव टू बी ऑक्शनड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकेंड इज आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ओनली देन आई थिंक यू कैन लाइक ऑप्ट द राइट आंसर कि झारखंड में है गोल्ड माइंस। ओके, ईस्ट सिंहभूम झारखंड है, वहां पे केंद्रू गोचा माइन है, दैट इज अ लाइक नाइस ऑपरेशनल गोल्ड माइन इन इंडिया। और अगर अदर थोड़े और ऑपरेशनल गोल्ड माइंस की बात करें तो कर्नाटका में है हुती एंड ऊती। सो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में है गोल्ड माइंस, कर्नाटका में भी है। Next question is from the year 2017 with reference to river Tista.
Consider the following statements. First, the source of river Tista is same as that of Brahmaputra, but it flows through Sikkim. Second, river Rangit originates in Sikkim and it is a tributary of river Tista. Third, river Tista flows into the Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. So, which of the statements given above is or are correct? So, please pause the video and then we'll discuss the answer. So the answer is option B, that is 2 only. Okay, so river Rangit originates in Sikkim and it is a tributary of river Tista. So a third जो line है वो actually थोड़ा आपको पता होगा अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है अच्छे से ज्योग्राफी कि river Tista flows into the Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. ये सही नहीं है. River Tista meets Brahmaputra river which later along with the Ganga merges into Bay of Bengal. ठीक है, तो आप थर्ड अगर स्ट्राइक आउट कर पाते हो तो आप ऑप्शन बी पे पहुंच जाओगे सीधा, क्योंकि 3 ऑप्शंस में थर्ड है. ओके, एंड थोड़ा सा और अगर हम तिस्ता रिवर पे पढ़ लें तो द तिस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पानहुड़ी और तिस्ता कांगसे ग्लेशियर. ओके, एंड इट फ्लोज साउथवर्ड थ्रू द सिक्किम हिमालय, while the Brahmaputra river originates on the Angsi glacier located on the northern side of the Himalaya in Burang country of Tibet. तो आप देखिए कि यहाँ पे पहला जो लाइन है वो ये है कि द सोर्स ऑफ रिवर तिस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम. ये सही नहीं है, दोनों के अलग सोर्सेस हैं. तिस्ता रिवर पानुरी और तिस्ता कांगसी ग्लेशियर से आता है और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आंगशी ग्लेशियर से आता है जो तिब्बत में है. सो दैट इज नॉट राइट. ठीक है, सो लेट्स proceed to the next question. Next question is again from the year 2017. Consider the following statements. In India, the Himalayas are spread over 5 states only. Second, Western Ghats are spread over 5 states only. Third, Pulicat Lake is spread over 2 states only. So please pause the video and I'll discuss the answer. So answer is option B, that is 3 only. So Pulicat Lake is right. It is spread over 2 states, that is Andhra Pradesh and Tamil Nadu border पर है ये Pulicat Lake. लेकिन ऑप्शन 1 और 2 गलत है. दोनों में ही 5-5 स्टेट लिखा हुआ था बट दोनों ही 6-6 स्टेट्स में स्प्रेड है, हिमालयस भी और वेस्टर्न घाट्स भी. तो आप देखते हैं कि यूपीएससी जो है आपका इंटरेस्ट देखना चाहती है कि आपको कितना इंटरेस्ट है जेन्युइनली इन नोइंग कि क्या चीजें हैं हमारे देश में, कितने स्टेट्स तक क्या है, जो नॉर्मल ज्योग्राफिक फीचर्स हैं उनके बारे में जानकारी, नॉट लाइक बुकिश बट द रियल इंटरेस्ट. तभी आपको थोड़ा पता होगा, मतलब क्योंकि रट रट कर आप कितनी चीजें याद रख सकते हो. बट जेन्युइन इंटरेस्ट अगर आप पालो थोड़ा कि हाँ हिमालयाज कितने स्टेट्स में है या वेस्टर्न घाट्स कितने स्टेट्स में, तो आपको लाइक ऐसे नहीं कि सीधा कितने स्टेट्स में है, आपको नॉर्मली पता हो जाएगा कि ऐसे ऐसे हिमालय जाती है, ऐसे ऐसे वेस्टर्न घाट्स जाती है. सो दैट इज द ऑब्जर्वेशन यूपीएससी इज लुकिंग फॉर. सो यहाँ पे आप देखिए हिमालयस के बारे में अगर हम थोड़ा अच्छे से पढ़े तो हिमालयस 6 स्टेट्स में है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश. ओके, तो ये मेनली जो हिमालयस है एंड सम एक्सटेंशंस ऑफ शिवालिक्स जो लोअर हिमालयस है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पंजाब एंड हरियाणा. सो फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकेंड इज वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर ऑल्सो अगेन ओवर 6 स्टेट्स, 5 स्टेट्स नहीं. सो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. सो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग. तो यही है, आपको जो मेन फीचर्स हैं इंडिया के ज्योग्राफिक फीचर्स वगैरह उनके बारे में जेन्युइनली थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए कि कहाँ है क्या है वैसा काइंड ऑफ. बिकॉज आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, बेसिक जो आपको पता होना चाहिए एज अ जेन्युइन लाइक रीडर ऑफ इंडियाज थिंग्स. अगर आप इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये सब चीजें थोड़ा पता होना चाहिए, तो वो चीजें लुक फॉर करती है यूपीएससी. So let's move to the next question. Next is, I think this is the last question of the video. So if you want to see gharials in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? That is A, Bhitarkanika mangroves, B, Chambal river, C, Pulicat lake, D, Deepur Beach. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is ऑप्शन बी, दैट इज चंबल रिवर. यहाँ पे नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. सो ये एकदम सीधा सीधा सवाल था. अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल सीधे तरीके से प्यार से वो चंबल रिवर वाला स्ट्राइक कर देंगे कि आपको पता है अगर कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेशनल चंबल घड़ियाल. सो ऑब्वियसली घड़ियाल को अगर आप नेचुरल हैबिटेट में देखना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, वहीं पे जाएंगे, है ना.
और घड़ियाल का मैंने एक फोटो दिया है, देखिए ऊपर में, ऑन द राइट साइड, टॉप टॉप राइट साइड, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखो, उनका घड़ियाल्स का एक मेन फीचर जो होता है ना, उनकी जो स्नाउट है, देखो बहुत लॉन्ग स्नाउट है, जो उनका जो आगे का मुंह है काइंड ऑफ, वो बहुत बड़ा सा है, उसको स्नाउट बोलते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग स्नाउट, सो दैट इज लाइक हाउ घड़ियाल्स लुक, ठीक है। और इंडिया में एक्चुअली 3 तरीके के क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, वन इज घड़ियाल, वन इज सॉल्ट वाटर, और एक कुछ मडी क्रोकोडाइल्स होते हैं। सो यस, तो अभी भीतरकनिका मैंग्रोव्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भीतरकनिका मैंग्रोव्स में क्या क्या पाया जाता है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडली टर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भीतरकनिका बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इट्स अ मैंग्रोव वेटलैंड इन उड़ीसा। एंड आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है, ऑलिव रिडली टर्टल मिलता है, तो ये दोनों ही आपको याद रहना चाहिए। पुलिकट लेक के बारे में अगर देखें तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट brackish water lagoon after Chilika Lake, and we have already read that it is on Andhra Pradesh Tamil Nadu border. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रैकिश है, मतलब यहाँ का वाटर जो है वो बिल्कुल ही यूज करने लायक नहीं होता, जो बहुत ज्यादा सॉल्ट कंटेंट हो जिसमें। सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश आफ्टर चिलिका लेक, ओके। सो चिलिका लेक इज इन उड़ीसा। और दीपोर बिल इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने कहा था आपको, विंटर सीजन के समय में बहुत सारे एक्वेटिक बर्ड्स की गैदरिंग होती है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, एंड इट इज इन आसाम, ओके। एंड फाइनली अगर हम लोग नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में थोड़ा और जाने, सो इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स, दैट इज राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ओके। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें? क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल एंड रेड क्राउन रूफ टर्टल, ये दोनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, घड़ियाल और रेड क्राउन रूफ टर्टल, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज हमें मिलती है, दैट इज गैंजेस रिवर डॉल्फिन, विच इज इन इंडेंजर्ड कैटेगरी। सो आपको कैटेगरी भी थोड़ा पता होना चाहिए, ओके। सो दिस इज वेयर वी एंड द वीडियो, एंड okay, let's move to the picture section. Okay. सो जो लोग नए हैं चैनल पे, मैं बता दूं कि ये गेम ये है कि आपको एक पिक्चर दिया जाएगा एंड यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट कि इंस्टेंटली आपके दिमाग में इस पिक्चर को देखकर क्या आया, ओके। सो प्लीज प्लीज लाइक गेम खेलो यार, मैं देख रही हूँ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मैं फिर भी ये दुख सह रही हूँ। तो ओके, सो लेट्स फोकस ऑन द पिक्चर नाउ। सो ये पिक्चर देख के मुझे एक ही ख्याल आता है यार, कितनी अच्छी जिंदगी है इनकी, मतलब लिटरली यहाँ पे हम लोग पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं कब क्या होगा, रिजल्ट होगा या नहीं होगा, किसी को पता नहीं है। एंड दीज पीपल अपने सिल्की शीट्स में सो रहे हैं मस्त। वैसे लाइक कैट्स, यू नो, दे आर द सबसे ज्यादा दुलारू काइंड ऑफ एनिमल, मतलब सीरियसली, मतलब उनको बस कुछ नहीं, उनका है कि बस भैया हमें हमें ना एकदम कडलिंग चाहिए, हमें बस दुलार मिलता रहे। एंड अरे मेरे घर में एक बार हुआ था यार, आई मीन मैं ऐसे गेट खुला छोड़ के चढ़ गई थी, और उसके बाद आई केम, मेरे बेड के ऊपर ब्लैंकेट पे, मेरा जो एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है जिसको मैं अपने दिल से लगा के रखती हूँ, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, उस पर बैठी हुई थी बिल्ली। आई वॉज लाइक व्हाट, आई मीन बहन तुझे बैठना है, तू बेड पे भी बैठ सकती है, नहीं लेकिन वो बेड के ऊपर चढ़ के वो ब्लैंकेट पे बैठेगी, क्योंकि दैट वाज द सॉफ्टेस्ट पार्ट। आई वाज लाइक माय गॉड, इसके अरमान तो मुझसे भी ज्यादा ऊपर है यार। दैट इज हाउ कैट्स आर, सो यस, आई मीन, बट एनीवेज दे आर अमेजिंग, क्यूट। सो यस, this is where I end the video. I hope the video was helpful to you. एंड थोड़ा अप डाउन होता है यार नंबर ऑफ वीडियोस पे, लेकिन मैं बोलूंगी कि काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं। तो अगर किसी दिन आपको लगे कि आज आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई वीडियो नहीं भी आई है, सो प्लीज लाइक रिवाइज, अगर आपके पास रिवीजन का मौका तो हमेशा होता है, ऐसा तो नहीं है एक बार देखा और आपको सब याद हो गया होगा। तो अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिस्करेज कर रही हूँ, लेकिन रिविजन कर लो यार, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आऊंगी वीडियो के साथ, दैट इज नॉट द थिंग, बट सी मैं एक दिन में बहुत सारे वीडियोस पोस्ट कर देती हूँ जब मेरा थोड़ा लैग होता है, बट इट मे नॉट बी लाइक द प्रॉपर डे फॉर यू टू गो थ्रू ऑल दैट, यू नो, ऑल दोज वीडियोस। सो इसीलिए अपने अपने हिसाब से वीडियोस देखते रहिए। एंड मैं ट्राई करूंगी कि हर दिन एक कंसिस्टेंट नंबर ऑफ वीडियोस डालूं, बट आई
लाइक बी वेरी ऑनेस्ट हियर, मेरा थोड़ा वर्क है ना, तो कभी कभी काम ऐसा हो जाता है कि थोड़ा अप डाउन होगा फ्रेंड्स, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू कीप, है ना। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस डालूं, और कंटेंट कवर हो जाएगा यार, देखो वो तो पक्का है, लेकिन बात है कि आपको कंसिस्टेंटली देखते रहना है, और चैनल देखते रहिए। मैं प्रीमियर करती हूँ वीडियो को, तो अगर आपको आ रहा हो और आप तभी फ्री बैठे हो तो प्लीज़ देख लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप कुछ और कर रहे हैं अभी, तो फाइन, आप अपने टाइम पे देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओके, so thank you so much for watching the video, and if you really liked it, so please give it a thumbs up and share the video to your friends or anyone who feels that this channel will be useful to them. And if you are a new someone to this channel, welcome sir and madam, please subscribe to the channel, and any person is welcomed here. तो आप प्लीज आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और I will never disappoint you. That is a promise. So thank you so much for watching the video. I'll see you in the next video. Bye bye.